welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 15th of English, and the name of the chapter is Music Finds Satchmo. Right? So that was all about, that was the name of the chapter. So now let us begin with the chapter very quickly and see what they are trying to tell us. I was frightened when I woke. Okay, जब मैं उठा तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. What were they going to do to me? कि वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं. Where were they going to send me? कि वो लोग मुझे आखिर कहाँ भेज रहे हैं. How serious was it to fire off a pistol in the street? कि ये कितनी ज़्यादा एक सीरियस कंसेंट है कि उन्होंने एक भरी स्ट्रीट में, एक सड़क पर एक पिस्टल फायर की थी. Oh, I had a million minds and I could not pacify any of them. कि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं. millions of thoughts are there that are roaming in my mind, पर मैं उनमें से एक को भी पैसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ. The door was opened about 10 o'clock by a man carrying a bunch of keys. कि जो डोर है वो खुला about 10 o'clock, 10 बजे के आसपास एक आदमी ने खोला जिसके हाथ में वो bunch of keys कैरी किए हुए था. Louis Armstrong, he asked. और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग हो? Yes sir. उसने बोला जी हाँ. This way you are going out to the wives' home for boys. और उसने बोला कि तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो वाइफ्स के लिए जो कि होम फॉर बॉयज है. Then I went out in the yard. A wagon was waiting with 2 fine horses to pull it. और जैसे ही मैं बाहर यार्ड में गया तो एक वेगन was waiting with 2 fine horses to pull it. वेगन यानी कि एक पूरा जो तोंगा होता है वो वहाँ पर उसका वेट कर रहा था, जिसमें बहुत अच्छे 2 हॉर्सेस थे जो कि उसको खींचने के लिए खड़े थे. A door with a little bitty grilled window was slammed behind me and away I went. कि एक डोर मेरे पीछे एक ग्रिल्ड विंडो के साथ बंद हुआ जोर से और उसके बाद मैं वहाँ से दूर चला गया. Right? Along with several youngsters, जिसमें कि और भी मेरे ही जैसे कुछ youngsters present थे. The Waves' home was an old building located in the country opposite a great big dairy farm where hundreds of cows, bulls, calves and few horses were standing. तो जो वेव्स होम था वो एक्चुअली एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जो कि कंट्री के ऑपोजिट जो कि कंट्री में लोकेटेड थी, जिसके ऑपोजिट में एक बहुत ही बड़ा सा डेयरी फार्म था जहाँ पर बहुत सारी काउस, बुल्स, काव्स और कुछ हॉर्सेस खड़े रहा करते थे. When I got out of the wagon with the other boys, the first thing I noticed was several large trees standing before the building. कि जैसे ही मैं वेगन से बाहर आया दूसरे बॉयज़ के साथ, तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी थी वो थी several large trees, कुछ बड़े बड़े से पेड़ जो कि उस बिल्डिंग के आसपास खड़े थे. A very lovely odor was swinging across my nostrils. कि एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू मेरी नोज़ के पास घूम रही थी. What flowers are those that smell so good? I asked. और मैंने पूछा कि ये कौन से फूल हैं जिनकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है. Honeysuckles was the answer. और मुझे आंसर मिला कि वो फ्लावर्स थे honeysuckles. I fell in love with them and I am ready to get a whiff of them anytime. और I fell in love with them कि मुझे उन फूलों से उस टाइम बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और and I am ready to get a whiff of them anytime.
और मैं कभी भी उन्हें अपने साथ लेकर घूम सकता हूँ. The inmates were having their lunch. अब जो inmates थे वो actually अपना lunch कर रहे थे. We walked down a long corridor leading to the mess hall. कि हम सभी लोग कॉरिडोर से नीचे जा रहे थे मेस हॉल की तरफ. Where a long line of boys was seated, eating white beans without rice out of tin plates. Right? कि हम सभी where long line of boys was seated, कि जहाँ पर उस मेस में एक लंबी सी लाइन थी जिसमें बॉयज़ बैठे हुए थे. वाइट बीन्स विदाउट राइस, वो लोग वाइट बीन्स खा रहे थे और वहाँ पर उनकी प्लेट्स में चावल भी नहीं थे. They gave me the rookie greeting saying, "Welcome newcomer, welcome to your new home." अब उन सभी ने मेरा वेलकम किया और मुझे बोला कि अब तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है. राइट. आई वॉज टू डिप्रेस्ड टू आंसर. उस टाइम मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या आंसर करना चाहिए. When I sat down at the end of the table, I saw a plate full of beans being passed in my direction. जैसे ही मैं उस लाइन के एंड में बैठा, उस टेबल के एंड में बैठा, तो मैंने देखा कि एक प्लेट जिसमें बीन्स हैं बहुत सारी, वो मेरी तरफ चलकर आ रही है. In times that I didn't have a care in the world, I would have annihilated those beans. Right? कि उस समय जब मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करता इस दुनिया में, उस समय मुझे बीन्स खाने पड़े. But this time I only pushed them away. पर इस बार मैंने सिर्फ उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया. I did the same thing for several days. और मैंने कुछ दिनों के लिए यही सेम चीज़ दोहराई. The keepers, Mr. and Mrs. Jones, and Mr. Alexander and Mr. Peter Davis saw me refuse these meals, but they did not say anything about it. कि मैंने यही चीज़ बार बार हर दिन दोहराई, तो जो कीपर्स थे, जो कि थे मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, मिस्टर अलेक्जेंडर और मिस्टर पीटर डेविस, उन्होंने मुझे इस मील को मना करते हुए देख लिया कि मैं इस मील को नहीं खाना चाहता हूँ, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोले. On the fourth day, I was so hungry, I was first at the table. कि फोर्थ डे पर मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और मैं टेबल पर वो था जो सबसे पहले आकर बैठ चुका था. मिस्टर जोन्स एंड हिज कलीग्स गेव मी अ बिग लाफ. कि मिस्टर जोन्स और उनके कलीग्स जो थे वो मुझे देखकर हंसने लगे. I replied with a sheepish grin. और मैंने उन्हें एक बहुत ही बुरे तरीके से जवाब दिया. मिस्टर जोन्स, a young man who had recently served in a cavalry, drilled us every morning in the court in front of the wife's home, and we were taught the manual of arms with wooden guns. कि मिस्टर जोन्स, जो कि एक यंग मैन थे, जो कि रिसेंटली कैवलरी में से आए थे, राइट, वो हमें रोज़ सुबह ट्रेनिंग देते थे, हमें ड्रिल करते थे और हमें बताते थे कि हमें आर्म्स के बारे में ट्रेनिंग देते थे कि हम कैसे उन गन्स को पकड़ सकते हैं, जो कि वुडन गन्स की हेल्प से हमें सिखाया जाता था. मिस्टर अलेक्जेंडर taught the boys how to do carpentry. कि मिस्टर अलेक्जेंडर ने बॉयज़ को सिखाया कि कैसे कारपेंट्री की जाती है. How to garden and how to build campfires. कि कैसे हम गार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे हम कैंप फायर्स को बना सकते हैं. मिस्टर पीटर डेविस taught music and gave vocational training. कि मिस्टर पीटर डेविस taught music, उन्होंने उसे म्यूज़िक सिखाया, and gave vocational training, और उन्हें vocational training दी गई.
Each boy had the right to choose the vocation which interested him. कि हर एक बॉय को ये एक राइट था, एक फ्रीडम थी कि वो कोई सा भी वोकेशन एक चूज कर सकता है जिसमें कि उसे इंटरेस्ट हो, राइट. Quite naturally, I would make a beeline to Mr. Davis and his music. और ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ थी कि मैंने अपना जो बीलाइन था वो मिस्टर डेविस और उनकी म्यूज़िक की साइड चुनी. म्यूज़िक हैज़ बीन इन माई ब्लड फ्रॉम द डे आई वॉज बॉर्न. कि म्यूज़िक मेरे खून में उस समय से है जब से कि मैं पैदा हुआ था. अनलकीली एट फर्स्ट I did not get on very well with Mr. Davis because he did not like the neighborhood I came from. कि बुरी बात है कि पहले मैं मिस्टर डेविस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. I did not get on very well with Mr. Davis. ना ही मुझे वो पसंद आए क्योंकि वो एक ऐसे नेबरहुड से नहीं आते थे जहाँ से मैं आता था. He thought that only the toughest kids came from Liberty and Perdido streets. और उन्हें ऐसा लगता था कि सिर्फ जो टफेस्ट किड्स होते हैं, जो लाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, वो सिर्फ लिबर्टी और पर्डिडो स्ट्रीट से ही आते हैं. मिस्टर डेविस thought since I had been raised in such bad company, I must also be worthless. तो मिस्टर डेविस ने सोचा कि क्योंकि आई हैड बीन रेज्ड इन सच बैड कंपनी, क्योंकि मुझे इतनी बैड कंपनी लाइक मैं इतने गंदी जगह पर पला बड़ा हूँ, आई मस्ट ऑल्सो बी वर्थलेस, कि शायद मैं भी उनके लिए यूजलेस हूँ, कि मुझसे भी कोई काम नहीं होता हो. आई वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं बहुत लंबे समय तक उनसे बहुत ज़्यादा डरता रहा. Our life was regulated by bugle calls. कि हमारी जो लाइफ थी वो एक्चुअली बगल कॉल्स के थ्रू रेगुलेट की जाती थी. A kid blew a bugle for us to get up. कि एक बच्चा जो है वो बगल बजाता था हमें उठाने के लिए. To go to bed and to come to meals. जब हमें सोने के लिए जाना होता था या फिर जब हमें मील्स के लिए जाना होता था, तो हर चीज़ के लिए वो बगल जो है बजाया जाता था. द लास्ट कॉल वॉज द फेवरेट विद अस ऑल. कि जो लास्ट कॉल थी वो हम सभी की फेवरेट थी. वेदर दे वर कटिंग ट्रीज अ माइल अवे और बिल्डिंग अ फायर अंडर द ग्रेट केटल इन द यार्ड टू स्केल्ड our dirty clothes, the boys would hot foot it back to the home when they heard the mess call. Right? कि जो लास्ट वाली कॉल थी वो हमारी फेवरेट हुआ करती थी. डजेंट मैटर कि हम कोई भी काम कर रहे हों, चाहे हम पेड़ों को काट रहे हों बहुत दूर हों, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, हम अपने गंदे कपड़े धो रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, हम सभी अपने कामों को ऐसे ही छोड़कर खाने के लिए मेस हॉल में पहुंच जाते थे. I envied the burglar because he had more chances to use his instrument than anyone else. कि मुझे उस बगलर से थोड़ी सी जलन होती थी, एनवेस होती थी, क्योंकि he had more chances to use his instrument. उसके पास ज़्यादा chances थे कि वो अपने instrument को use करे than anyone else. When the orchestra practiced with Mr. Davis, who was a good teacher, I listened very carefully, but I did not dare go near the band, though I wanted to be in the worst way. तो जब भी ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस चल रही होती थी मिस्टर डेविस के साथ, जो कि बहुत अच्छे टीचर थे, मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनता था, पर मैं कभी भी उस बैंड के पास जाने की कोशिश नहीं करता था. Though I wanted to in the worst way, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सबसे गंदा गाऊंगा. I would sit in a corner and listen, enjoying myself immensely. कि मैं सिर्फ एक कॉर्नर में बैठ जाता था, उन्हें गाते हुए सुनता था और अपने आप को एंजॉय करता था. The little brass band was very good, and Mr. Davis made the boys play a little of every kind of music.
कि जो लिटिल ब्रास बैंड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड मिस्टर डेविस मेड द बॉयज़ प्ले अ लिटिल ऑफ एवरी काइंड ऑफ म्यूज़िक। और मिस्टर डेविस जो थे वो बॉयज़ से हर तरीके का गाना बजवाया करते थे। I had never tried to play the cornet, but while listening to the band every day, I remembered Joe Oliver, Bolden and Bunk Johnson कि मैंने कभी भी कॉर्नेट को बजाने का नहीं सोचा है। कॉर्नेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, राइट? पर मैं रोज़ उस बैंड को उसे बजाते हुए बहुत ध्यान से सुनता हूँ और याद करता हूँ जो ओलिवर को, बोल्डन और बंक जॉनसन को। एंड आई हैड एन ऑफुल अर्ज टू लर्न द कॉर्नेट। और मेरे मन में एक इच्छा जागी उस कॉर्नेट को बजाना सीखने के लिए कि मैं कैसे उसे बजा सकता हूँ। बट मिस्टर डेविस हेटेड मी। पर मिस्टर डेविस जो है वो मुझे पसंद नहीं करते थे। फर्दरमोर I did not know how long they were going to keep me at the home. और इसके साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने टाइम तक वो मुझे घर पर रखने वाले हैं। The judge had condemned me for an indefinite period, which meant that I would have to stay there until he set me free or until some important white person vouched for me and for my mother and father. कि जो जज है उन्होंने मुझे कंडेम किया था कि मुझे उसी जगह पर रहना पड़ेगा जब तक कि मैं फ्री ना हो जाऊं या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो, राइट? That was my only chance of getting out of the wives' home fast. कि सिर्फ वही एक तरीका था जिससे कि मैं उस वाइव्स होम से जल्दी निकल सकता था। So I had plenty of time to listen to the band and wish I could learn to play the cornet. तो मेरे पास बहुत सारा समय था ताकि मैं उस बैंड को सुन सकूं और विश कर सकूं कि काश मैं भी उस कॉर्नेट को बजाना सीख पाता। Finally, through Mr. Jones, I got a chance to sing in the school. और एंड में मिस्टर जोन्स की मदद से मुझे एक मौका मिला कि मैं स्कूल में गा सकूं। My first teacher was Miss Striggins, कि मेरी जो पहली टीचर थी वो थी मिस Striggins. Then I was sent to Miss Wiggin, who taught the higher grades. और उसके बाद मुझे मिसेस विगन के पास भेजा गया, who taught the higher grades, जिन्होंने higher grades को पढ़ाया था। As the days rolled by, Mr. Davis commenced to lighten up on his hatred of me. और जैसे ही as the days rolled by, जैसे ही वो days जो है वो ख़त्म हुए, मिस्टर डेविस ने मुझे नफ़रत करना थोड़ा बंद कर दिया, यानी कि मैं अब उन्हें थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था। Occasionally, I would catch his eye meeting with mine. और कभी कभी मैं ये भी देखता था कि मेरी और उनकी आंखें जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं। I would turn away, but he would catch them again and give me a slight smile of approval, which would make me feel good inside. कि मैं यूजुअली उनसे नज़रें चुराता था, पर जब मैं दोबारा उनकी तरफ देखता था तो वो मुझे एक हल्की सी स्माइल देते थे जिसे देखकर लगता था कि हाँ, लाइक दैट वाज अ साइन ऑफ अप्रूवल, कि हाँ अब वो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं। फ्रॉम देन ऑन, व्हेनेवर मिस्टर डेविस स्पोक टू मी और स्माइल्ड, कि उस टाइम से जब भी मिस्टर डेविस मुझसे बात करते थे या फिर स्माइल करते थे, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। गी व्हाट अ फीलिंग दैट कमिंग फ्रॉम हिम, कि ग्ले यानी खुश हो जाता था कि क्या ही फीलिंग थी जो उनकी साइड से मेरे लिए आती थी। 6 months went by, और इसी तरीके से 6 महीने बीत चुके थे। We were having
supper of black molasses and big chunk of bread, कि हम अपना डिनर कर रहे थे जो उसमें ब्लैक मोलासेस थे और बड़े बड़े ब्रेड चंक्स थे. Which after all that time seemed just as good as home cooked chicken dinner, जो कि उस टाइम पर इतने ही अच्छे दिख रहे थे जैसे कि घर पर चिकन डिनर होता है. Just as we were about to get up from the table, Mr. Davis slowly came over and stopped by me. और जैसे ही हम वहाँ से अपना खाना ख़त्म करके निकल रहे थे टेबल पर से, तो मिस्टर डेविस स्लोली मेरे पास आए और मेरे पास आकर रुके. Louis Armstrong, he said, how would you like to join our brass band? और उन्होंने मुझसे पूछा कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें हमारा बैंड ज्वाइन करने के लिए प्रपोज करूँ तो? I was so speechless and so surprised. I just could not answer him right away. मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और इसीलिए मैं उन्हें उस मोमेंट पर जवाब ही नहीं दे पाया. To make sure that I had understood him, he repeated his question. और मिस्टर डेविस को उस टाइम पर लगा कि शायद मुझे उनका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, तो उन्होंने अपना क्वेश्चन रिपीट करा और पूछा कि ताकि मुझे अच्छे से समझ आए. लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, I asked if you would like to join our brass band. तो उन्होंने दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट किया कि लुइस स्ट्रॉन्ग, क्या तुम हमारा ब्रास बैंड ज्वाइन करना चाहोगे? I certainly would, Mr. Davis. I certainly would. I stammered. Stammered यानी मैं थोड़ा सा हकलाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और मैंने बोला कि हाँ मिस्टर डेविस, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. He patted me on the back and said, wash up and come to rehearsal. उन्होंने मेरी बैक पर मुझे पैट किया और मुझसे प्यार से बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ और अपने हैंड्स वॉश करके जल्दी से रिहर्सल के लिए आ जाओ. While I was washing, I could not think of anything of my good luck in finally getting a chance to play the cornet. कि जब मैं अपने हैंड्स वॉश कर रहा था तो मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था सिवाय अपनी खुश नसीबी के जो मुझे फाइनली एक चांस दिया गया उस कॉर्नेट को बजाने के लिए. I got soap in my eyes but didn't pay any attention to it. कि उस टाइम मेरी आईज में भी शायद थोड़ा सा सोप चला गया पर मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. I thought of what the gang would say when they saw me pass through the neighborhood blowing a cornet. और मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि गैंग जो है वो क्या बोलेगी जब वो मुझे देखेंगे कि मैं उनके नेबरहुड से गुजर रहा हूँ एक कॉर्नेट बजाते हुए. I already pictured myself playing with all the power and endurance of a bunk. कि मैं अपने माइंड में ऑलरेडी ये सब चीज़ें फील कर चुका था. होता है ना जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो यू स्टार्ट ड्रीमिंग कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, राइट? सेम वॉज विद हिम ऑल्सो. वो भी अपने माइंड में सभी चीज़ें प्रिपेयर कर चुका था, राइट? जो और बोल्डन, व्हेन आई वॉज वॉश्ड आई रश्ड टू द रिहर्सल. और उसके बाद उसने जब अपने हैंड्स वॉश कर लिए थे तो वो रिहर्सल के लिए चला गया. Here I am, Mr. Davis. और उसने मिस्टर डेविस को बोला कि मैं यहाँ आ चुका हूँ. To my surprise, he handed me a tambourine, the little thing you tap with your fingers like a miniature drum. और मैं ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने मेरे हाथ में एक टैम्बोरिन दी है जो कि एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम टैप कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, जो कि बिल्कुल एक छोटे से ड्रम की तरह होता है. सो दैट वॉज द एंड ऑफ माई ब्यूटिफुल ड्रीम. तो ये एंड था मेरे ब्यूटिफुल से ड्रीम का, यानी मेरा सपना यहाँ पर टूट चुका था. बट आई डिड नॉट से अ वर्ड. पर मैंने एक भी शब्द उसके बाद नहीं बोला. टेकिंग द tambourine, I started to whip it
in rhythm with a band. उसके बाद मैंने उस टैम्बरीन को लिया और उसे उसी रिदम में बैंड के साथ बजाना शुरू कर दिया. Mr. Davis was so impressed. He immediately changed me to the drums. मिस्टर डेविस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे और उन्होंने मुझे टैम्बोरीन से हटाकर ड्रम्स पर रख दिया. He must have sensed that I had the beat he was looking for. कि उन्होंने शायद ये महसूस किया होगा कि मुझ में शायद वो बीट है जो उन्हें चाहिए थी. They were playing at the Animals Ball, a tune that was very popular in those days. कि उस टाइम वो बजा रहे थे एट द एनिमल्स बॉल, एक ऐसी ट्यून जो कि उस समय पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी. एंड विच हैड अ ब्रेक राइट इन द चैनल, और साथ ही साथ उसमें एक ब्रेक भी था उस चैनल में. When the break came, I made it a real good one and fly one at that. और जैसे ही ब्रेक आया तो मैंने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बजाना शुरू कर दिया. All the boys yelled, "Hooray!" for Louis Armstrong. और वो सभी बॉयज मेरे लिए चीयर करने लगे. Mr. Davis nodded with approval, which was all I needed. उसके बाद मिस्टर डेविस ने अपना सिर हिलाया और मुझे अप्रूवल दिया जो कि मुझे चाहिए था. His approval was all important for any boy who wanted a musical career. कि उनका अप्रूवल उतना ही इम्पोर्टेंट था किसी भी बॉय के लिए जो कि अपना म्यूजिकल करियर बनाना चाहता था. You are very good, Lewis, he said. और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ. But I need an alto player. और उन्होंने कहा पर मुझे एक alto player चाहिए. How about trying your luck? और उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं अपना किस्मत आजमाते हो इसमें. Anything you like, Mr. Davis, I answered with all the confidence in the world. और मैंने उन्हें बोला क्यों नहीं मिस्टर डेविस, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा. और ये चीज़ मैंने एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने टीचर से बोली. He handed me an alto. और उन्होंने मेरे हाथ में एक alto दे दिया. I'd been singing for a number of years, and my instinct told me that an alto takes a part in the band same as a baritone or tenor in a quartet. कि मैं बहुत सालों से गाना गा रहा हूँ और मेरी जो इंस्टिंक्ट है वो मुझे बताती है कि ऑल्टो उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक बैंड में जितना कि एक बैरिटोन या फिर टोनर होता है क्वार्टेट में. I played my part on the alto very well. कि मैंने एल्टो पर अपना पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बजाया. As soon as the rehearsal was over, the bugle blew for bell. कि जैसे ही रिहर्सल जो है वो ख़त्म हुई तो जो बगल यानी कि जो हॉर्न था वो बेड पर जाने के लिए बज चुका था. All the boys fell into line and were drilled up to the dormitory by the band. उसके बाद सभी बॉयज़ ने लाइन बनाई और सीधा अपने डॉर्मेटरी के लिए निकल गए. In the dormitory we could talk until 9 o'clock. डॉर्मेटरी में हम 9 बजे तक बात कर सकते थे. When the lights were turned out and everybody had to be quiet and go to sleep. और जैसे ही लाइट्स जो है वो बंद होती थी तो हम सभी को चुप हो जाना होता था और सोने के लिए चले जाना होता था. Nevertheless, we used to whisper in low voices, taking care we did not attract the attention of the keepers who slept downstairs near Mr. and Mrs. Jones. Right? उसके बाद nevertheless we used to whisper कि उसके बाद हम बात बिल्कुल नहीं कर सकते थे, not even in a low voice. Right? पर एग्जैक्टली वी वर बॉयज़, वी वर स्टूडेंट्स, तो हमें वो करना अच्छा लगता था और हम धीरे धीरे किसी का ध्यान ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए बात करते थे. राइट? और जो कीपर्स थे वो भी
उस टाइम तक सो जाते थे, राइट? इन द मॉर्निंग व्हेन द बगल ब्लू, आई कांट गेट हिम अप. We jumped out of bed and morning and dressed as quickly as possible because our time was limited. और सुबह को जब जैसे ही बगल बजता था, I can't get him up. मैं उस टाइम नहीं उठ पाता था. We jumped out of bed. हम बेड पर से उठते थे, अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी ड्रेस करते थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ करता था. They knew just how long it should take. They had been in the business so long. क्योंकि उन्हें पता था कि कितना टाइम हमें देना चाहिए क्योंकि वो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से थे. It was useless to try to run away from the wives' home. कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार की चीज़ थी कि अगर हम ट्राई करते वहाँ से भागने का, वाइव्स होम से भागने का. Anyone who did was caught in less than a week's time. कि जिसने भी ये किया उसे 1 हफ्ते से भी कम टाइम में पकड़ लिया गया था. As time went on, I commenced being the most popular boy in the home. कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे होम का, घर का सबसे पॉपुलर बॉय जो है वो कमेंस्ड कर दिया गया. Seeing how much Mr. Davis liked me and the amount of time he gave me. ये सब देख कर कि मिस्टर डेविस जो है वो मुझे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो टाइम का अमाउंट यानी कि जितना टाइम वो मुझे देते हैं. The boys begin to warm up to me and take me into their confidence. Right? कि बॉयज़ जो है वो मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगे थे और मुझसे फ्रेंडशिप भी बढ़ा ली थी. One day, the young bugler's mother and father, who had gotten his release, came to take him home. अब एक दिन जो यंग बगलर था उसके मम्मी और पापा जैसे ही उन्हें रिलीज मिल चुकी थी उसे वापस अपने घर ले जाने के लिए आए. The minute he left, Mr. Davis gave me his place. और जैसे ही जैसे ही वो वहाँ से गया मिस्टर डेविस ने मुझे उसकी जगह दे दी. I took up the bugle at once and began to shine it up. कि मैंने उस बगल को एक बारी ही उठाया और began to shine it up. The other bugler had never shined the instrument and the brass was dirty and grey. यानी कि मैंने उसे साफ किया, शाइन अप यानी उसे चमका दिया क्योंकि जो दूसरा बगलर था उसने कभी भी उस इंस्ट्रूमेंट को साफ नहीं किया था तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था और ग्रीन हो चुका था. The kids gave me a big hand when they saw the gleaming bright instrument instead of the old filthy green one. कि जो बच्चे थे उन्होंने मुझे मेरी तारीफ़ की, मुझे क्लैप किया, मेरे लिए क्लैप किया जब उन्होंने एक ब्राइट इंस्ट्रूमेंट देखा उस ओल्ड फिल्थी ग्रीन इंस्ट्रूमेंट की जगह. I felt real proud of my position as a bugler. कि मुझे अपनी पोजीशन बगलर के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ. I would stand very erect as I would put the bugle nonchalantly to my lips and blow real mellow tones. कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैं सीधा खड़ा हुआ और बगल को अपने लिप्स पर लगाकर उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लो करने लगा. The whole place seemed to change. और तब मैंने देखा कि जो पूरी जगह थी वो चेंज होती हुई नज़र आने लगी थी. Satisfied with my tone, Mr. Davis gave me a corner and taught me how to play Home Sweet Home. इस चीज़ से मिस्टर डेविस और भी ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने मुझे एक कॉर्नर दिया और वहाँ पर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे होम स्वीट होम प्ले करना है. Then I was in 7th heaven. और उस वक्त मैं 7वें आसमान पर जा चुका था. Unless I was dreaming, my ambition had been realized.
कि जब तक मैं सपने ही देख रहा था, मेरा जो एम्बिशन था वो मुझे रियलाइज़ हो चुका था, यानी कि मेरा जो मोटिव था वो मैं रियलाइज़ कर चुका था। Every day I practiced faithfully on the lesson Mr. Davis gave to me. कि हर दिन मिस्टर डेविस जो भी मुझे सिखाते थे मैं उसे पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था. I became so good on the cornet that one day Mr. Davis said to me, Lewis, I am going to make you the leader of the band. और धीरे धीरे मैं उस कॉर्नेट को बहुत अच्छे से बजाने लगा और एक दिन मिस्टर डेविस ने मुझे कहा कि लुइस, मैं तुम्हें इस बैंड का लीडर बनाने वाला हूँ. आई जम्प स्ट्रेट इनटू द एयर. उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया. मिस्टर डेविस वॉचिंग मी एंड रैन टू द मेस रूम टू टेल द बॉयज द गुड न्यूज़. कि मिस्टर डेविस उस टाइम मुझे देख रहे थे और मैं भागकर मेस रूम में गया ताकि मैं सभी बॉयज़ को ये गुड न्यूज़ दे सकूं. They were all rejoiced with me कि वो सभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश हुए. Now at last I was not only a musician but a band leader. और अब आखिर में आते आते मैं सिर्फ एक म्यूजिशियन ही नहीं बल्कि एक बैंड लीडर भी बन चुका था. Now I would get a chance to go out in the streets and see Mayan and the gang that hung around Liberty and Perdido streets. अब मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं उन स्ट्रीट्स पर बाहर जा सकूं एंड सी मैं मयान देख सकूं और गैंग दैट हंग अराउंड लिबर्टी एंड पर्डिडो स्ट्रीट्स. द बैंड ऑफन गॉट अ चांस टू प्ले एट अ प्राइवेट पिकनिक or join one of the frequent parades through the streets of New Orleans. कि जो बैंड था उसे कभी कभी ही ये चांस मिलता था प्राइवेट पिकनिक पर प्ले करने का या फिर किसी भी फ्रीक्वेंट परेड को ज्वाइन करने का जो कि न्यू ऑर्लिन्स की स्ट्रीट पर हुआ करती थी. The band's uniform consisted of long white pants turned up to look like knickers, black easy walkers or sneakers as they are now called, thin blue gabardine coats, black stockings and caps with black and white bands which looked very good on the young musicians. कि हमें जो बैंड की यूनिफॉर्म थी उसमें वाइट पैंट्स थी, राइट, जो कि टर्न्ड अप टू लुक लाइक निकर्स, जो कि फोल्ड करके उन्हें निकर्स की तरह ही बना दिया जाता था. कुछ ब्लैक इजी वॉकर्स थे, स्नीकर्स थे, जिन्हें आज हम ब्लू गैबर्डीन कोट्स बोलते हैं, ब्लैक स्टॉकिंग्स बोलते हैं, कैप्स बोलते हैं, कैप्स विद ब्लैक एंड वाइट बैंड्स which looked very good on the young musicians, जो कि उन young musicians पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. To stand out as the leader of the band, I wore cream-colored pants, brown stockings, brown easy walkers and a cream-colored cap. क्योंकि मैं उस बैंड का लीडर था तो मुझे थोड़ा अलग आउटशोन होके निकलना था, तो इसीलिए मैंने क्रीम कलर की पैंट्स पहनी थी, ब्राउन स्टॉकिंग्स थी, ब्राउन इजी वॉकर्स थे और एक क्रीम कलर की कैप थी. In those days, some of the social clubs paraded all day long. कि उन दिनों में कुछ सोशल क्लब्स हुआ करते थे जो कि पूरा दिन परेड किया करते थे. When the big bands consisting of old timers complained about such a tiresome job, the club members called on us. कि जब बिग बैंड्स जो थे जो कि बहुत पुराने टाइम से उस बैंड में थे, जब वो कंप्लेन किया करते थे कि वो थक चुके हैं अपनी इस जॉब से, तो वो हमें बुलाया करते थे. Those boys, they said, will march all day long and won't squawk one bit. तो उन्होंने बोला कि हम जैसे बॉयज़ पूरा दिन वो काम कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं और अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाल सकते. They were right. वो बिल्कुल सही थे. We were so glad to get a chance to walk in the street. कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमें चांस मिला उस स्ट्रीट पर वॉक करने का. That we did not care how long we paraded and how far. Right?
कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमें एक चांस मिला स्ट्रीट पर वॉक करने का. दैट वी डिड नॉट केयर, जो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि हाउ लॉन्ग वी परेडेड और हाउ फार, कि हम कितनी देर तक परेड करेंगे या फिर कितनी दूर तक करेंगे. द फर्स्ट डे वी परेडेड थ्रू माई ओल्ड नेबरहुड, कि पहला दिन था जब हमने अपने ओल्ड नेबरहुड के पुराने नेबरहुड से पास ऑन किया था. Everybody was gathered on the sidewalks waiting for the band because they knew that Mayan's son would be in it. Right? कि सभी लोग sidewalks पर खड़े हुए थे. They were waiting for the band. वो वे बैंड का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मयान का जो बेटा है वो वहाँ पर होगा. But they had never dreamt that I would be playing the cornet. पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक cornet बजा रहा होऊंगा. They ran to wake up Mama, who was sleeping after a night job. वो दौड़कर ममा को उठाने के लिए गए जो कि अपनी नाइट जॉब के बाद सो रही थी. So she could see me go by, ताकि वो मुझे देख सके वहाँ से गुजरते हुए. Then they asked Mr. Davis if they could give me some money. और उसके बाद मिस्टर डेविस को पूछा गया कि अगर वो मुझे कुछ पैसे दे दे. He nodded his head with approval, not thinking that the money would amount to very much. और मिस्टर डेविस ने अपना सर हिलाया अप्रूवल देते हुए, और उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं करी कि उस पैसे का अमाउंट आखिर कितना होगा. बट ही डिड नॉट नो दैट स्पोर्टिंग क्राउड, पर उन्हें उस स्पोर्टिंग क्राउड के बारे में कुछ भी नहीं पता था. दो स्पोर्ट्स गेव मी so much that I had to borrow the hats of several other boys to hold it all. कि वो इतना ज़्यादा, वो जो स्पोर्ट्स था उन्होंने मुझे इतने ज़्यादा पैसे दिए कि मुझे दूसरे बॉयज़ की हैट लेनी पड़ी उन पैसों को कैरी करने के लिए. I took in enough to buy new uniforms and new instruments for everybody who played in the band. कि मैंने वहाँ से इतने पैसे ले लिए थे कि मैं सबके लिए जो मेरे बैंड में थे उनके लिए न्यू यूनिफॉर्म्स और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ले सकता था. The instruments we had been using were old and badly battered. कि जो instruments हम यूज़ कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और ख़राब हो चुके थे. This increased my popularity at the home, and Mr. Davis gave me permission to go into town by myself to visit my aunt. कि इन सब चीज़ों ने मेरी जो पॉपुलैरिटी थी वो घर पर भी इंक्रीज़ हो चुकी थी. मैं घर पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, और मिस्टर डेविस ने मुझे परमिशन दी कि मैं टाउन में खुद से जा सकता हूँ मयान से मिलने के लिए. He and Mr. and Mrs. Jones probably felt that this was the best way to show their gratitude. मिस्टर डेविस, मिस्टर और मिसेस जोन्स को ये लगा कि यही एक तरीका है जिसकी मदद से वो अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं ल्यूइस को. राइट? सो दिस वाज अ ब्यूटिफुल चैप्टर विच वाज रिटन बाय Louis Armstrong. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.